So, friends, we are going to discuss today about close call or near miss. You can see here is the example of near miss or close call happened in Mumbai airport. This is news from NDTV. You can see the two flights running on the same track. One flight is landing at the same time, another flight is taking off. So, here is the potential of happening the big disasters. However, they escape from the accidents. So, all the near miss or close call shall be taken care of by the concern in industry or at the airports. So, this is all about near miss or close call. So friends, अभी आपने नियर मिस के लेटेस्ट एग्जांपल देखे हैं या कैसा एक्सीडेंट्स बच गया इन बॉम्बे एयरपोर्ट. सो हम लोग अभी नियर मिस के बारे में जानेंगे, एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे या इंसिडेंट क्या है वो भी जानते हैं. तो व्हाट इज़ नियर मिस? नियर मिस का डेफिनेशन क्या है? Near miss is defined as an event that does not lead to harm but does have the potential to cause illness or injury. Near miss is also referred as close call, near accidents or injury free events. So accidents मतलब क्या है? An accident is defined as an unexpected or unplanned event resulting in personal injury or property damage. So incident क्या है? It is an unexpected event that may result in property damage but does not result in injury or illness. What is dangerous occurrence? Dangerous occurrence meaning any unplanned, uncontrolled event like fire, bursting of steam pressure parts, explosion of pressure vessels, collapse of building or floor, lifting equipments, etc. without causing any bodily injury. So friends, नियर मिस यानी कि एक ऐसा इंसिडेंट है कि उसमें घटना घटी लेकिन ना उसमें किसी को चोट लगी या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या किसी प्रॉपर्टी डैमेज हुई. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज कॉल और इंजरी फ्री इवेंट्स, यानी कि होते होते बच गया या हम लोग और भी भाषा में बोलते हैं बाल बाल बच गया. सो दिस इज़ कॉल्ड एज नियर मिस और क्लोज कॉल. ओके, सो व्हाट इज़ एक्सीडेंट? Accidents is defined as unexpected or unplanned event resulting in personal injury or property damage. इसमें घटना घटी और उसमें आदमी को चोट लग गया या इंजरी हो गई और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डैमेज हो गई या कंपनी का नुकसान हो गया, इक्विपमेंट का नुकसान हो गया. सो इसको एक्सीडेंट बोलते हैं. नाउ एज पर दी इंडियन स्टैंडर्ड IS 3786 इसमें काफ़ी एक्सीडेंट के डेफिनेशंस और व्हाट इज़ रिपोर्टेबल, व्हाट इज़ नॉन रिपोर्टेबल, इसमें सारे दिए हैं. आप लोग इंडियन स्टैंडर्ड 3786 आप रेफर कर सकते हो और थोड़ा जानकारी लेने के लिए. सो दिस इज़ एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट में काफ़ी नुकसान होता है. हम लोग अभी बहुत से मीडिया में देखते हैं या न्यूज़ में देखते हैं या फायर इंसिडेंट देखते हैं. तो इसलिए ऐसे कोई नियर मिस या कोई एक्सीडेंट्स, कोई इंसिडेंट्स या डेंजरस ऑकरेंस नहीं होना चाहिए कंपनी में, ताकि कंपनी का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और साथ ही साथ आदमी को भी चोट लगती है या आदमी की मौत होती है, कर्मचारी की मौत होती है. तो ऐसे दुर्घटना नहीं होना चाहिए. लेकिन इसलिए काफ़ी स्तर पर एक्सीडेंट्स टालने के लिए ये प्रॉपर सेफ्टी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो नेक्स्ट, इंसिडेंट क्या है? इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट मे रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज बट डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी और इलनेस. इसमें इंजरी नहीं हुआ है या इलनेस नहीं हुआ है बट प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है. सो दिस इज़ कॉल्ड
incidents. Now, dangerous occurrence. Dangerous occurrence means any unplanned, uncontrolled event like fire, bursting of steam pressure parts, explosion of pressure vessels, collapse of building or floor, lifting equipments without causing any bodily injury. So, dangerous occurrence is also to be reported to dish authority or government authorities. Accidents in which 48 hours or more than 48 hours disability is involved, then we have to report in the prescribed format to the government authority or dish authorities. Okay, so this is all about definitions. Now we can see the example of near misses. In first example, one person is going from the scaffolding areas, and fortunately he was wore the safety helmet, so he is escaped from the head injury. And another person, he was going from his nearby, so he seen his situation and became alert, and he is wearing the helmet, you can see now. Okay, साथ ही साथ उसने चेन स्ट्रिप भी बांधा है. This is also important. In another case, a person is escaped from the serious injuries as the bucket of the pockling is fall down just in front of him. So this is also near miss. This is also a near miss. Okay, so we will go next. Now why to report near miss? Near miss क्यों करने का है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. सो रिपोर्ट करने से या नियर मिस रिपोर्ट करने से प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, वी विल प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड्स बिफोर दे कॉज एक्चुअल हार्म. सो जो पोटेंशियल हजार्ड्स है या खतरे छुपे हुए हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, ताकि आगे जाके एक्चुअली एक्सीडेंट होने वाले या उसमें होने वाले नुकसान टल जाएगा. नाउ सेफ्टी कल्चर, वी हैव टू फोस्टर अ सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसमें सेफ्टी कल्चर डेवलप करना है. इसमें सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट एम्प्लॉयज़ या कर्मचारी के माइंड में होना चाहिए, ताकि वो सेफ्टी को प्रायोरिटी दे देंगे और छोटे मोटे होने वाले नुकसान या एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट टल जाएंगे. नाउ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी इज़ ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. इसमें कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी होना चाहिए. दिस विल प्रोवाइड डाटा टू इनहांस द सेफ्टी मेजर्स एंड प्रोसेसेस. इसमें क्या क्या लैप्सेस है ये पता चलेगा, इसमें क्या कमी है, सेफ्टी मेजर्स कहाँ और लेना चाहिए, और प्रोसेस में कुछ लैप्सेस है या नहीं है, ये सारे मालूम हो जाएगा. सो इसके लिए ये अपना नियर मिस रिपोर्टिंग डाटा इम्पोर्टेंट रहता है. कॉस्ट रिडक्शंस, प्रिवेंट कॉस्टली एक्सीडेंट्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस. सो आपको पता है कोई भी एक्सीडेंट्स होता है और हादसा होता है कंपनी में, तो काफ़ी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है. इसमें सारे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, काफ़ी नुकसान होता है. कंपनी का प्रॉपर्टी लॉस होता है या कंपनी के प्रोडक्ट लॉस होते हैं. सो ह्यूमन को भी सफरिंग होना पड़ता है, कभी कभी फैटेलिटीज़ बन जाती है. तो ये सारे एक्सपेंसेस फर्दर जो है वो अवॉइड हो जाएंगे. सो इसलिए बोला है कि वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट by reporting the near misses. Now, employee engagements involves the employees in safety initiatives, boosting morale and cooperations. इसमें आदमी को मोरल हो जाएगा, उसको मोरल बूस्ट हो जाएगा, उसको वो इंथुसियाज्म बढ़ जाएगा, और आदमी जो एम्प्लॉयज़ है हमारे वो एंगेज हो जाएंगे, और सेफ्टी कल्चर्स ऑटोमेटिकली
डेवलप हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। दिस विल हाईलाइट द एरियाज़ फॉर ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स इम्प्रूवमेंट। इसमें से नियर मिस रिपोर्ट करने से इसमें जब एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ अपना एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ स्किल इम्प्रूवमेंट करना है। उसके अनुसार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। और सो दैट इट इज़ सेड दैट दिस इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। नाउ रूट कॉज एनालिसिस, और उसको RCA बोलते हैं, हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द अंडरलाइन कॉजेस ऑफ हजार्ड्स। कंपनी के अंदर क्या क्या हजार्ड्स है, हिडन हजार्ड्स क्या क्या हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस कर सकते हो। सो इसलिए यू हैव टू रिपोर्ट द ऑल नियर मिसेस। नाउ ये ट्रायंगल आपने देखा है या और आपने समझा भी होगा इसमें क्या मेंशन कर रहा है। सो दिस ट्रायंगल इज़ कॉल्ड एज Henry's triangle or Henry's 329-1 model. So there was the scientist H.W. Henrich. He was a safety scientist and he was superintendent at insurance company. He concluded after investigation of 75,000 cases, and he concluded that in a group of 330 accidents, 300 are the near misses, 29 are the minor injuries, and 1 is the major injury. So इसका मतलब है कि आपको नियर मिसेस पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि अगले होने वाले माइनर इंजरीज और मेजर इंजरीज ये टल सकते हैं। सो नियर मिस इज़ द बेस फॉर माइनर इंजरी एंड मेजर इंजरी। सो दिस इज़ टोल्ड अबाउट H.W. Henrich, safety scientist. Now ये आपने देखा है इंसिडेंट क्या है, नियर मिस क्या है और एक्सीडेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखे हो और उसको नियर मिसेस क्यों रिपोर्ट करना है ये देखे। नाउ हाउ टू कंट्रोल द नियर मिसेस, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या नियर मिसेस आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर क्या क्या रेमेडियल मेजर्स कैसे करेंगे, तो उसके बारे में ये डिटेल्स आप ये चार्ट के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द 4 एरियाज, फ्रॉम दिस वी कैन कंट्रोल द नियर मिसेस। नाउ वी विल गो वन बाय वन। सेफ्टी कल्चर। सो सेफ्टी कल्चर foster a culture where safety is a priority and employees feel comfortable reporting near misses without fear or punishments. सो सेफ्टी कल्चर कंपनी के अंदर डेवलप करेंगे तो नियर मिस रिपोर्ट करने में आसान हो जाएगा। नाउ ट्रेनिंग एंड एजुकेशंस, दिस इज़ आल्सो प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, emergency procedures and importance of reporting near misses. एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देना है, उसको बताना है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे नियर मिस रिपोर्ट करना है, उसका कुछ फॉर्मेट है तो वो कैसा भरना है, उसके बारे में जानकारी देना है। नाउ रिस्क असेसमेंट्स, कंडक्ट ए थ्रो रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड्स एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क। रिस्क असेसमेंट कैसा करना है, उसमें क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या सिविरिटी है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये सारे आता है। इसको हीरा बोलते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। सो ये रिस्क असेसमेंट हर ऑपरेशंस या हर एक्टिविटी को करना ज़रूरी पड़ता है। सो दिस विल आल्सो हेल्प टू कंट्रोल द नियर मिसेस। नाउ SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसको SOP बोलते हैं। सो वी हैव टू डेवलप एंड एनफोर्स द क्लियर SOPs फॉर ऑल टास्क एंड इंश्योर दे आर फॉलो रिगुलरली। हर एक्टिविटी की एक SOP रहता है, हर कोई मशीन चलाना है या कोई क्रेन चलाना है या कोई इक्विपमेंट चलाना है तो उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आता है। सो वी शुड फॉलो द SOP so that near misses can be avoided. Now regular maintenance, ensure the regular maintenance of equipment and machinery to prevent the malfunctioning that could lead to near misses. इसमें कोई खराबी या इक्विपमेंट मशीन में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको प्रॉपरली हम PM शेड्यूल बोलते हैं या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। सो दिस शुड बी फॉलोड
रेगुलरली सो दैट एनी डैमेजेस या इसमें मशीन में खराबी ना आ जाए. सो सेफ्टी इंस्पेक्शन. सेफ्टी perform the regular safety inspection and audits to identify and rectify the potential hazards. इसमें इंस्पेक्शन या ऑडिट करने से काफ़ी हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके ऊपर हम रेमेडी एक्शन ले सकते हैं. नाउ रिएक्टिव मेजर्स में क्या क्या आएगा? नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम्स. इस्टेब्लिश रोबस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम्स फॉर नियर मिसेस, ensuring it is easy for employees to use and that they understand the importance of reporting. Important नियर मिस रिपोर्टिंग का इम्पोर्टेंट क्या है वो उसको कर्मचारी को समझा देना ज़रूरी रहता है. एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन. वी हैव टू इन्वेस्टिगेट ऑल रिपोर्टेबल नियर मिसेस थ्रू टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज एंड इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन. जितने भी नियर मिस रिपोर्ट हुए हैं उसको सारे एनालाइज करना है, उसमें क्या क्या रेमेडियल एक्शंस लेना है या क्या प्लान किया है, उसमें से ये सारे डिटेल्स जानकारी एम्प्लॉय को बताना चाहिए. नाउ डाटा एनालिसिस. एनालाइज नियर मिस डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड कॉमन कॉजेस, देन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. इसमें डाटा जो कलेक्ट हुआ है उसमें आप एनालाइज करेंगे तो इसमें पता चलेगी कॉमन कॉजेस क्या है एंड उस पर आप प्रॉपर एक्शंस लेने में आसान हो जाएगा. वी हैव टू मेक द फीडबैक लूप. क्रिएट ए फीडबैक लूप वेयर फाइंडिंग्स फ्रॉम नियर मिस इन्वेस्टिगेशंस आर कम्युनिकेटेड बैक टू एम्प्लॉयज़ अलॉन्ग विद द एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट द रिकरेंस. ये अपना नियर मिस रिपोर्ट होने के बाद उसका जो फीडबैक है वो बैक टू एम्प्लॉयज़ या जिसने नियर मिस रिपोर्ट भरा है वहाँ तक डाउन लेवल तक जाना चाहिए, ताकि दिस इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एंड टू क्रिएट द सेफ्टी कल्चर. नाउ करेक्टिव एक्शंस. implement and track corrective actions for each reportable near miss, ensuring that they are completed and effective. इसमें क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिया है, क्या इसका एक्शन प्लान है या कब कंप्लीट होगा, ये सारे डिटेल्स अपना रिकॉर्ड में होना चाहिए. नाउ टेक्नोलॉजिकल एड्स. सो अभी सॉफ्टवेयर बहुत से हर एक कंपनी यूज़ करती है. एवन एक्सीडेंट्स फील कैसा करना है या नियर मिस कैसा भरना है, सो ये सारे चीज़ अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. सो वी हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजिकल एड्स सो दैट we can control the near misses easily. Safety management software. Use software to track or manage the near miss reports, investigation and corrective actions. ये सारे अपने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा. इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं हुआ है या क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिया, क्या क्या करेक्टिव एक्शंस बाकी है, ये इसमें आपको पता चलेगा. मॉनिटरिंग सिस्टम्स. Implement real-time monitoring systems for critical processes to detect and address issues before they result into incidents. So इसमें मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए ये टेक्नोलॉजिकल्स ये अपना सॉफ्टवेयर डाटा काम आएगा. तो इसलिए ये सारे डिटेल्स अपना सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. वेरिएबल टेक्नोलॉजीज. यूटिलाइज वेरिएबल टेक्नोलॉजी for workers to monitor vital signs and environmental conditions, providing alerts for potential hazards. इसमें potential hazards क्या क्या है इसके बारे में पता चलेगा. Last is the employee involvements. Employee involvement is very important so that we can improve the safety culture in organizations. So safety committee, everybody is aware, सबको पता है safety committee हर एक कंपनी में रहता है. So establish safety committees that include representatives from different levels of the organization to oversee safety initiatives and review near miss reports. ये अपना सेफ्टी कमेटी में इम्पोर्टेंट्स जो है या क्रिटिकल आपने नियर मिस हुए हैं कंपनी के अंदर, वो मंथली बेसिस पे आप डिस्कस कर सकते हो और उसका स्टेटस भी बता सकते हो कि क्या क्या स्टेटस है और क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या एक्शन बाकी है and like that. Now encouragement and incentives. This is important for employees to
boost for reporting the more number of near misses. Encouragement and incentives. Encourage reporting of near misses through positive reinforcement and possibly incentives for employees who actively contribute for improving the safety. सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के लिए जो ज़्यादातर नियर मिस रिपोर्ट करता है या सेफ्टी का ज़्यादा काम करता है या इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसको आप इंसेंटिव बेस पे कुछ कर सकते हैं ताकि ये आदमी में मोटिवेशंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा. नाउ कम्युनिकेशन. मेंटेन ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट सेफ्टी इश्यूज and near misses, ensuring that all employees are aware of potential hazards and measures in place to control them. तो इसमें सबको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन शैल बी ओपन टू ऑल, एंड इसमें क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है, क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड्स के बारे में अवेयरनेस निर्माण हो जाएगा. तो ये सारे चीज़ इसमें आता है. बाय कंबाइनिंग दीज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मेजर्स, इंडस्ट्रीज कैन इफेक्टिवली कंट्रोल and reduce the occurrence of near misses, ultimately leading to safer working environment. ये सारे चीज़ प्रोएक्टिव मेजर्स, रिएक्टिव मेजर्स, टेक्निकल एड्स एंड एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट्स, ये सारे के सारे कंबाइन करने के बाद आपको नियर मिस कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद रहेगा. एंड वी कैन डेवलप द सेफ्टी कल्चर और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. सो this is the format of near miss reporting. This is taken from the net just for reference and for discussion. We can you can use it, you can improve it, and we can change as per the requirement. This is a department or locations, क्या क्या है इसमें डेट एंड टाइम भरना है, AM PM. Then we have to tick the appropriate, whether it is unsafe equipment, whether the near miss is due to unsafe act or whether it is due to unsafe condition or unsafe use of equipments. Now इसमें potential hazards क्या क्या है ये आप भर सकते हो 1 2 3. ठीक है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्रिप्शंस ऑफ नियर मिस क्या है ये पूरा भरना है. व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शंस, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ. देन प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है, इसमें क्या क्या एजेंसीज इन्वॉल्व हुए हैं और किस वजह से ये नियर मिस हुआ है. उसके बाद आपने करेक्टिव एक्शंस क्या क्या ले आए, वेदर इट इज़ एलिमिनेटेड, मिनिमाइज, रिपेयर, रिप्लेस और रिटेन. सो उसको बोलते हैं कैपा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्या क्या ले आए. सो ये भरना है. नाउ स्टेटस क्या है, वेदर इट इज़ कम्प्लीटेड और नॉट कम्प्लीटेड. देन डेट ऑफ कम्प्लीशन, अगर कंप्लीट हुआ तो कब हुआ है. रिपोर्ट सबमिटेड बाय, किसने सबमिट किया. एंड एम्प्लॉय विक्टिम्स अगर इन्वॉल्व है तो उसका सिग्नेचर आएगा. नाउ फॉलोइंग इज़ द रीजंस फॉर नॉट कंप्लीट, अगर कंप्लीट नहीं है तो वाई दिस वाज नॉट कंप्लीटेड, वी हैव टू पुट द स्टेटस. देन टारगेट डेट ऑफ कम्प्लीशन, अगर नहीं हुआ है तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है क्लोजिंग का, क्लोजिंग डेट, क्लोज हुआ है तो क्या क्लोजिंग डेट है. ओके. So this is more or less, this is the sample of near miss reporting. So दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा. इसमें सारे हम लोग नियर मिस के बारे में डिस्कस किया है, नियर मिस के एग्जांपल देखे हैं, नियर मिस में कंट्रोल कैसा करना चाहिए, नियर मिस क्यों रिपोर्ट करना चाहिए, ये सारे हम एस्पेक्ट्स कवर किए. तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आएगा. वी कैन यूज़ दिस डाटा, वी कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री, और आप लोग जो सेफ्टी प्रोफेशनल है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो हम इधर ही क्लोज़ करते हैं. सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं. सो जय हिंद, जय सुरक्षा.